Hello everyone, this is Sonam Dwivedi here. Hope you all are fit and sound being at your home. So here, children, we are going to start our new chapter, that is chapter 20, the child's letter. Okay, in this chapter you will come to know how a child is writing a letter to the governor. Okay, so let us start. Everybody was afraid of the old governor because he was so cross and surly. And one morning he was surlier than ever because he had been troubled for several days with a matter which he had already decided. ओके सो चिल्ड्रन यहाँ पर एक गवर्नर जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में बताया गया है कि हर कोई जो है वो उनसे डरता है क्योंकि वो इतने ओल्ड एज हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी वो करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि जिस भी मैटर को वो पहले से डिसाइड कर चुके थे वो काफ़ी दिनों से सुलझ नहीं पा रहा था। बट मैनी पीपल विश्ड फॉर रिवर्सल ऑफ हिज डिसीजन, क्योंकि जो डिसीजन उन्होंने लिया था लोग क्या सोच रहे थे कि इसका जस्ट उल्टा हो। अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ अ स्मॉल क्राइम हैड बीन इम्प्रिजन्ड, यानी कि जो एक व्यक्ति हैं ऑफ अ स्मॉल क्राइम, यानी कि जिन्होंने एक क्राइम किया हुआ है, गुनाह किया हुआ है छोटा सा, हैड बीन इम्प्रिजन्ड। देयर वर मैनी पीपल हु वर श्योर द मैन हैड रिपेंटेड ऑफ हिज क्राइम. He was not in the habit of doing wrong, but just this once his circumstances had forced him to stray from the right path. यानी कि लोग क्या चाह रहे थे कि वो जो व्यक्ति था उसने अनजाने में ये क्राइम किया, मीन्स वो करना नहीं चाहता था लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, ऐसी रीजंस हुए कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा. They earnestly sought the governor's pardon, more so because his family needed his support. To all these solicitations, the governor replied with an emphatic no. गवर्नर ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसे जेल जाना होगा. Having made up his mind, उसने अपना माइंड सेटअप कर रखा था. The old governor had no patience with those who persisted in their pleadings. So the governor was rather agitated that morning, and when he came to his office, he said to his secretary, "Admit no one to see me." यानी कि सभी लोग वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से उस व्यक्ति को जो है छोड़ दिया जाए, बट जो गवर्नर थे वो डिसाइड कर चुके थे कि इस मैटर को क्लोज करना है, कैसे, उस व्यक्ति को जेल में डाल के. और उन्होंने अगले दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि कोई भी अंदर मत आने देना. आई एम वेरी ऑफ दीज कॉन्स्टेंट एंड सेंसलेस पिटिशंस. द सेक्रेटरी हैड अ डिस्क्रीट regard for the old governor's feelings. His presence of mind and loyalty to his employer did not allow him to disregard the governor's feelings. यानी कि जैसा गवर्नर साहब ने बोला था उसी के अकॉर्डिंग उनके सेक्रेटरी को चलना था और इसीलिए उन्होंने किसी को भी अंदर आना अलाउ नहीं किया. He bolted the door and sat himself down at his modest desk and got busy with his work, sorting the mail that had come for the governor. और वो अपनी डेस्क पर बैठ गए और अपना वर्क करने लगे. कुछ मेल्स उनके लिए आए थे जिनको वो देखने लगे. His attention to duty was more intense than usual, for never before had the secretary seen the old governor in such a foul mood. यानी कि इससे पहले व्यस्त उनके सेक्रेटरी ने कभी गवर्नर को नहीं देखा हुआ था. Has the mail come? Where are the papers and the letters? demanded the governor in a gruff voice. उन्होंने कहा मेल आया और सारे पेपर्स लेटर्स किधर हैं? Here they are sir. उसने कहा यहाँ पर हैं सारे पेपर्स. said the secretary as he put the bundle on the old governor's table. और उन्होंने पूरा बंडल किस पर रख दिया? गवर्नर्स की टेबल पे. They are addressed to you privately. The business letters are on my desk. Would you like to see them now? उन्होंने कहा कि कुछ बिजनेस लेटर्स मेरी डेस्क पर हैं, क्या आप उनको देखना चाहेंगे? Now, not now.
growled the governor. गवर्नर ने कहा, नहीं, अभी नहीं. I will read the papers and my private correspondence first. पहले मैं अपने private papers देखूंगा. But the governor again found a cause for uneasiness in this employment. लेकिन इस व्यवसाय में उसको थोड़ी सी उनको uneasiness यानी कि अच्छा नहीं लग रहा था. The papers discussed the affair of the imprisoned man and these private letters came from some of the governor's friend. क्योंकि जो चिट्ठियां आई थी, पत्र आए थे, उनमें फिर से उसी व्यक्ति का जिक्र हो रहा था जिसको सभी लोग जेल से छुड़ाना चाहते थे. और वो पत्र किसने लिखे थे? गवर्नर के मित्रों ने. Who strangely enough exhibited an interest in the prisoner's affairs. The governor was highly disgusted. इससे उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरे फ्रेंड्स भी क्या है, मेरे अगेंस्ट हैं. They should mind their own business, muttered the old governor. उसने कहा कि सबको अपने अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए. The papers are very officious and these other people are simply impertinent. My mind is made up. Nothing shall change me. उन्होंने अपना मन बना रखा था, कोई भी पत्र लिखे, कोई भी मेरा फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा. द गवर्नर rang द बेल एंड आस्क्ड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी टू ब्रिंग द बिजनेस लेटर्स. और फिर गवर्नर ने क्या किया? बेल बजाई और अपने सेक्रेटरी को बोला कि मेरे प्राइवेट बिजनेस लेटर्स लेकर आओ. द प्राइवेट सेक्रेटरी कुड हियर द ओल्ड गवर्नर ग्रोलिंग एंड फम्बलिंग ओवर द पाइल ऑफ द correspondence. He knew why the old governor was so vexed. उनको पता था कि जो गवर्नर हैं वो क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं. Many of these letters were petitions from the people concerned about the affair of the imprisoned man. क्योंकि बहुत सारे पत्रों में उसी व्यक्ति का जिक्र था जिसने गुनाह किया था और वो भी अनजाने में. Oh, how they angered the governor. said the governor at last. I am done with them. There are no more, I suppose. मुझे लगता है कि सब में यही लिखा है. The secretary made no reply, which was unusual. The governor, experienced and shrewd as he was, suspected something. He wheeled in his chair and searchingly regarded the secretary over his spectacles. और वो क्या कर अपनी चेयर पर बैठे बैठे मूव करते रहे और स्पेक्टिकल्स से कुछ ढूंढ रहे थे. ही सॉ दैट द सेक्रेटरी वॉज स्ट्रेंजली एम्बेरस्ड. उन्होंने देखा कि जो सेक्रेटरी है वो भी एम्बेरस हो चुकी. यू हैव नॉट शोन मी ऑल. तुमने मुझे सारे पत्र नहीं लिखाए. सेड द गवर्नर स्टर्नली. व्हाट इज इट यू हैव केप्ट बैक. वो क्या है जिसको आपने वापस रख लिया. द सेक्रेटरी सेड, आई हैड थॉट नॉट टू शो इट टू यू. मैंने सोचा कि मैं ये आपको ना दिखाऊं क्योंकि ये छोटे से बच्चे का लेटर है. आई थ्रू इट शुड नॉट बॉदर यू विद इट. द गवर्नर वॉज इंटरेस्टेड. उसको जैसे ही पता चला कि छोटे बच्चे का पत्र है तो उनको इंटरेस्ट यानी कि रुचि आई. अ चाइल्ड्स लेटर, वॉट कुड इट बी अबाउट. इसमें क्या हो सकता है. सच अ थिंग हैड नेवर हैपेंड टू हिम बिफोर. ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी बच्चे का पत्र आया हो. अ चाइल्ड्स लेटर, लेट मी सी इट. एक बच्चे का पत्र है, लाओ मैं देखता हूँ. एंड ऑल्दो हिज वॉइस वॉज हार्श, समवॉट ऑफ अ टेंडर लाइट केम इनटू हिज आईज. इट्स नथिंग बट अ स्क्रॉल, explained the secretary, and it comes from the prisoner's child. Monkton's little girl, Monkton's, the forger, you know. Of course, there's nothing to it, a mere scrawl, for the child is only 4 years old. ये बच्चा भी किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? प्रिजनर यानी कि जो कैदी है उसी के घर का है. So children, rest of the portion we will complete in next video. So keep watching my videos on my YouTube channel. Do subscribe if you have not subscribed it. So bye bye, take care, have a good day.